That's why they had to live in the world of predictability rather living in the world of exploration. आज के ज़माने में जो हम लोग की जेनज़ी जनरेशन है, उनके Yeah. पास इंटरनेट का एक्सेस बहुत ज़्यादा है। सो दैट क्रिएट्स अ गैप बिटवीन योर थिंकिंग एंड योर पेरेंट्स थिंकिंग। It's like, हाँ, perception leading to misunderstanding. हाँ, इफ थिंग्स आर नॉट गोइंग द वे यू वांट, सो हाउ टू डील विद दैट, हाउ टू कन्विंस योर पेरेंट्स फॉर थिंग्स लाइक जो आप चाह रहे हो कि आप करना चाह रहे हो। We overthink a lot on this topic is, what if I fail? What will people think, right? Am I disappointing my family? Or am I making the biggest mistake of life? Let me tell you very frankly that I have made a lot of mistakes in my life. Lot of mistakes. पता नहीं सोसाइटी ने ये आर्ट्स का हवा क्यों बना रखा है कि आर्ट्स आर्ट्स करेगा, आर्ट्स के बाद क्या है। उनको पत्थर गिराने दो, आप उसी पत्थर से एक इमारत खड़ी करो। ये आपका स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होना चाहिए। दैट्स अ ब्यूटीफुल लाइन बाय जाकिर खान यार, कि माँ बाप कभी आपके सपनों के विरोधी नहीं है, वो कभी आपको गरीब नहीं हाँ। देखना चाहते। Hello guys. Hello, guys. So today we have a very special guest and my dearest friend Nirnayak on the channel. Is It's his debut video on the channel. So as you have already seen the thumbnail or somewhere, we are gonna discuss parental pressure and societal judgment. And the reason I have asked him to join us is because his experiences and the way he has he has a journey, to pursuing BA in psychology, human resource management, and communicative English. So such a long course. It's been really, uh, it's not been a really smooth ride. So इसीलिए बुलाया हूँ कि निनायक भाई भी अपने कुछ experiences शेयर करेंगे, and as you guys know that this is a very unfiltered and raw video. It's gonna be very unfiltered and raw video, जैसे हमारी और सारी videos हैं. So निर्णायक को एकदम खुल के बात करनी है ना? थैंक यू भाई श्लोक भाई फॉर इनवाइटिंग मी टू योर चैनल। मैं आपके वीडियोस देख रहा हूँ, आपकी जर्नी को मैं बहुत सपोर्ट कर रहा हूँ शुरुआत से ही, एंड आई लव योर वीडियोस, आई लव द व्यू पॉइंट्स दैट यू हैव शेयर्ड, एंड थैंक्स फॉर ब्रिंगिंग बैक टू द यूट्यूब। क्योंकि 5 साल पहले भी मैंने एक चैनल शुरू किया था, बस डिफरेंस ये था कि मेरा चेहरा कभी दिखाई नहीं गया था। इट वाज जस्ट अ वॉइस ओवर विच आई डिड, but this is the first time I am live on YouTube. So thanks for inviting me online. Nanak bhai, my pleasure, and thanks for following this journey. Basically, the motto of this channel was you it was for students यार, जो बहुत से ऐसे चीज़ों से जा रहे होते हैं, जैसे हम लोग गए हैं 11th एंड 12th में एंड इवन इन Right. कॉलेज। सो वही था कि अगर किसी को वीडियो देके हेल्प ही हो जाए, इट्स नॉट अ बिग डील। So Ninayak, let's start the topic, and it's about parental pressure and societal judgment. So let's start with parental pressure first because वो societal judgment से काफी relate करता है. So what are your views on parental judgment, parental pressure, and what are your opinions on that? And फिर उसके बाद experiences बाद में share करते हैं फिर हम लोग. Okay. When you talk about parental judgment, okay, or in regards to the societal aspect, okay, पहले हम parental judgment पे आते पहले हाँ हैं। parental pressure पे बात करते हैं पहले ठीक हम. है। So parental pressure is a very vast topic, to be honest, right? So it needs a very long and a very thorough discussion. Now, see, from my perspective, parental pressure can be either positive or a negative. Now it depends on the society, on the environment that we are grown up, right? अब हम लोग देखिए, अब पेरेंटल प्रेशर की वजह से अगर आप स्टूडेंट के लाइफ में अगर कनेक्ट करना चाहते हो, ठीक है, स्पेशली इफ वी टॉक अबाउट दी जेंजीज, क्योंकि हम लोग सब जेंजीज हैं। सो अब पेरेंटल प्रेशर में ये बात आती है कि आई बिलीव दैट वी आर वन ऑफ द वेरी फर्स्ट जनरेशन that has been caught between two completely different worlds. The first world is about predictability, and the second is a world of exploration. अब पहला जो दुनिया है वो है प्रेडिक्टेबिलिटी की। उसमें क्या कहा जाता है कि
You go to the school, Shlok, study hard, get a secure job, earn it, and live your life. आपका life settled है. That is the world of predictability. Now coming to the world of exploration, ठीक है. इसमें होता है कि जेंजीज हम जैसे लोग वी आर एक्चुअली वेरी इनटू द वर्ल्ड ऑफ एक्सप्लोरेशन. हम लोग एक जगह पे नहीं रह सकते हैं. We like to move from one place to another, try new things, try different things, okay, make mistakes, learn from it. बहुत हम एक्सपीरियंस करना चाहते हैं चीजों में, एक्सपेरिमेंट ज्यादा करते हैं. तो इस वजह से क्या होता है कि चलो आप डिग्री करने आ गए हैं. तो now I am pursuing psychology and HR, right? Now it is not very accurate to say that I might become a concrete psychologist or a human resource specialist in the future. मेरा ऐसा भी तो ध्यान हो सकता है कि ओके आई थिंक आई कैन बी अ वेरी गुड फिल्म मेकर. आई थिंक आई कैन स्टार्ट माई ओन स्टार्टअप, राइट? तो ऐसे बहुत सारे होते हैं. और आई कैन बी अ डिजाइनर. तो दीज आर समथिंग वेयर वी हैव टू एक्सप्लोर. अब वही जो सेकंड दुनिया की बात आती है, एक्सप्लोरेशन, वहां पे आ जाते हैं सबसे बड़ा चैलेंज. द बिगेस्ट चैलेंज इज द वर्ल्ड ऑफ एक्सप्लोरेशन. अब कन्विंसिंग योर हमारे माँ पेरेंट्स। बाप की दुनिया में या हमारे दादा दादी सबके दुनिया में क्या होते थे कि पढ़ाई करो, डिग्री लो, नौकरी करो, बस. उस टाइम उतने एक्सपोजर नहीं थे. दे डिडंट हैव सोशल मीडिया, दे डिडंट हैव अ वेरी वास्ट सॉर्ट ऑफ नेटवर्क वेयर दे कैन कनेक्ट टू द वर्ल्ड. अब उसमें क्या है कि उनकी भी कोई गलती नहीं है. प्रॉब्लम है द वे वी थिंक एंड द वे वी परसीव, राइट? अब देखिए, ये एग्जांपल देता हूँ. अब मैं शायद ऐसा हो सकता हूँ कि मुझे स्टार्टअप शुरू करना है. आई नीड टू स्टार्ट फ्रॉम अ स्क्रैच. मैं एक स्टार्टअप करूंगा, इन्वेस्टर्स बुलाऊंगा, मतलब डिजिटल मार्केटिंग, एआई वगैरह लेके, मतलब पूरा एक मल्टी डायमेंशनल स्टार्टअप. अब वही स्टार्टअप आप आज 30 साल पहले के और में लेके जाइए, it would have been very different. Now we talk about AI, we talk about various other technological elements to integrate with our knowledge, right? But आज अगर if we take back to 30 years, the things were very different. उनके टाइम में कनेक्शन का जो जरिया था वो अलग था. उनके टाइम में टेक्नोलॉजी अलग थी. खैर, अब इंडिया की बात हो रही थी, उस टाइम इंडिया में एडवांस टेक्नोलॉजीज आए भी नहीं थे. That's why they had to live in the world of predictability rather living in the world of exploration. तो ये मेरे हिसाब से लगता है कि सबसे बड़ा पेरेंटल प्रेशर इस मूवमेंट पे आता है. ठीक है. अब इंडिया जैसे सोसाइटी में वी लिव इन अ डाइवर्स सोसाइटी. जैसे आप हो उत्तर प्रदेश के, मैं हूँ असम के. अब दोनों ही स्टेट के साथ अगर हम कंपेयर करें, दोनों ही स्टेट में आपको नहीं लगता कि लोगों की सोच में थोड़ा सा डिफरेंसेस होंगे? सही बात है Right? एकदम। I have a different culture. You have a different culture. I speak a different language. You speak a different language, right? तो उसमें सोच अलग है. अब जैसे मेरे यहाँ पे अगर बात किया जाए तो लाइक पीपल आर मोर प्रोग्रेसिव और मोर ऑब्सेस्ड टुवर्ड्स हैविंग अ गुड गवर्नमेंट जॉब. ठीक है, जहाँ पे पढ़ाई करेंगे, सेटल होंगे और बस अपना लाइफ कैरी ऑन करेंगे. मे भी उत्तर प्रदेश साइड में ऐसा हो सकता है कि ओके, गवर्नमेंट जॉब भी और थोड़ा सा जो अलग अलग कम्युनिटीज के हैं उनके शायद ऐसा भी हो सकता है कि नहीं, हमें बिजनेस करना है. जैसे हम गुजरात जैसे स्टेट्स में देखते हैं कि नौकरी वोकरी छोड़ो, छोकरे हम्म। पूरा बिजनेस में लग जाते हैं, राइट? तो सब सोसाइटीज में वो अलग होता है. अभी अगर यहाँ पे जितने मैंने एक्सपीरियंस की है अपने स्टेट में, अगर कोई लड़का बिजनेस करना चाहे तो इट इज वन ऑफ द वेरी बिगेस्ट चैलेंज फॉर हिम. इट्स नॉट ओनली फॉर हिम बट उससे भी ज्यादा चैलेंज है उसके माँ बाप को मनाना. हम्म। बिकॉज हिज पेरेंट्स विल आस्क, ओके बेटा तुम बिजनेस करोगे लेकिन चलेगा कैसे? तो दैट इज वन ऑफ द चैलेंज दैट इज ड्रिवन और इज परसिस्टिंग इन डिफरेंट सोसाइटीज विद इन दिस कंट्री. तो मुझे लगता है इसी वजह से एक पेरेंटल प्रेशर और वो जजमेंट विद इन अ फैमिली क्रिएट हो सकता है. तो ये मेरा व्यू पॉइंट है ऑन पेरेंटल प्रेशर. जैसे आपने एक बहुत सही बात कही कि वो एक्सप्लोरेशन वर्सेस प्रिडिक्टेबिलिटी। सो आई वुड वेरी मच अग्री ऑन दैट, बिकॉज अब स्पेशली मैं बात करूँ टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज़ ऑफ इंडिया की, जहाँ पर उतने एक्सप्लोर करने के ऑप्शंस नहीं हैं। और जैसे आपने बोला कि आज के ज़माने में जो हम लोग की जेनजी जनरेशन है, उनके या पास इंटरनेट का एक्सेस बहुत ज़्यादा है। सो दैट क्रिएट्स अ गैप बिटवीन योर थिंकिंग एंड योर पेरेंट्स थिंकिंग। सो लिटरली उधर पेरेंट्स का भी कोई फॉल्ट नहीं है, क्योंकि उनकी थिंकिंग जो है वो उनके एनवायरनमेंट से डिसाइड हो रही है। अब फॉर राइट. एग्जांपल
ऐसा नहीं है कि उनको अनकन्वेंशनल जॉब्स के बारे में मालूम नहीं है, बट द पॉइंट इज कि इफ अ सिटी प्रोड्यूसेस, आई एम टॉकिंग अबाउट टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटी स्पेशली, जहाँ पर उतनी बातचीत नहीं होती और होती भी है, तो ये सिटीज जो होती हैं काफ़ी लाइक यू नो दे आर नॉट मच पॉपुलेटेड और नॉट मच डेंस, तो उधर पता चल जाता है so उसके लड़के ने ये किया, इसकी लड़की ने ये किया, सो बात फैलने लगती है। राइट सो उधर क्या होता है कि इफ फॉर एग्जाम्पल 10 इंजीनियर्स निकल रहे हैं उस पर्टिकुलर सिटी में से, तो मम्मी पापा का तो माइंडसेट वही बनेगा ना कि अच्छा इस सिटी में से 10 इंजीनियर्स निकले हैं and उनकी सबकी स्टेबल जॉब है, स्टेबल इनकम है, सो माई डॉटर माई सन शुड ऑल्सो परस्यू इंजीनियरिंग, मेडिकल और गवर्नमेंट जॉब्स, बिकॉज ये तीन बेस हैं। दैट्स वाई सो मेनी पीपल आर गिविंग जेई नीट एंड प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी और अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स, क्योंकि उनको लगता है कि बस यही स्टेबल है, इसके बाद मेरे क्या नाम है बच्चों का करियर है वो सेट है, स्टेबल इनकम रहेगी। आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेशली राइट जो नॉन मतलब कि जिनकी फैमिलीज में बिजनेस नहीं होता। अब नाउ हियर कम्स अ हाँ थिंग जी जिनकी फैमिली में बिजनेस होता है, अब उनको भी होता है कि नहीं यार आई हैव टू एक्सप्लोर, आई हैव टू गो आउट, सो उधर भी पेरेंटल प्रेशर कभी कभार आ जाता है कि नहीं आप आइए बिजनेस कीजिए। सो इट्स वही इट्स इट्स हमारे धंधा को बोथ आगे साइड्स, बढ़ाएगी हाँ हमारे उसको आगे बढ़ाइए एग्जैक्टली। सो इट्स नॉट ओनली फॉल्स ऑफ पेरेंट्स है, क्योंकि हम लोग को भी समझना चाहिए कि उनकी थिंकिंग और हमारी थिंकिंग में काफ़ी डिफरेंस है ना। राइट बिकॉज उनके पास गूगल बाबा हैं, पर द वे वी यूज गूगल एंड इंटरनेट एआई, उनके पास वो नहीं है। एंड दैट्स वाई आई वही थिंक वो एक जो गैप जनरेट करता है उसमें, जहाँ पर क्लैश ऑफ ओपिनियंस क्लैश ऑफ इंटरेस्ट होता है, दैट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ पेरेंटल प्रेशर, जब वो आपके लिए अच्छा चाहते हैं, बट फॉर उनके अच्छे की डेफिनेशन हो सकता है इंजीनियरिंग है, मेडिसिन है, मेडिकल है एंड गवर्नमेंट जॉब्स है, बिकॉज दे डोंट वही तो वांट। बेसिकली इट्स लाइक हाँ परसेप्शन लीडिंग टू मिसअंडरस्टैंडिंग हाँ, कि वही जहाँ पर होता है इसमें डिस्कशन हो नहीं पा रहा है, बिकॉज सम पीपल और सम स्टूडेंट्स होते हैं कि यार नहीं यार पापा मम्मी से कैसे बहस करें, है ना, जो बोल रहे हैं वही अच्छे के लिए बोल रहे होंगे। इट्स नॉट ऑलवेज दैट, हमेशा अच्छे के लिए बोलते हैं, बट द पॉइंट इज कि वो एक्सप्लोरेशन की जो हमारी एबिलिटी है वो कहीं ना कहीं छिन जाती है। सो दैट्स अ रियली गुड पॉइंट टू स्टार्ट विद। एंड अब इधर हम बात करते हैं कि ठीक है अगर पेरेंटल प्रेशर है एंड इफ थिंग्स आर नॉट गोइंग द वे यू वांट, सो हाउ टू डील विद दैट, हाउ टू कन्विंस योर पेरेंट्स फॉर थिंग्स लाइक जो आप चाह रहे हो कि आप करना चाह रहे हो। फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू परस्यू इंजीनियरिंग, you want to pursue public policy, economics, or psychology, because to give a राइट reference, we both are from a non-medical background. We both tried for engineering and now we both are doing bachelors of arts. So कैसे convince करें? What was your experience? फिर मैं अपना share करूंगा। ओके ठीक है तो पहली बात ये होता है कि पेरेंट्स का जो जजमेंट बनता है ना इट्स बिकॉज ऑफ द सोसाइटी फर्स्टली ओके तो पहली बात तो ये है कि उनका भी एक तरफ से चिंता रहती है एंड इवन वी ओवरथिंक अ लॉट ऑन दिस टॉपिक इज व्हाट इफ आई फेल व्हाट विल पीपल थिंक राइट am I disappointing my family or am I making the biggest mistake of life so these are a lot of questions that used to rumbles around our head ठीक है तो ये सब चीजें के वजह से क्या होता है वी डू नॉट गेट अ क्लैरिटी फर्स्टली अब उससे बचने की तरीका पहली बात तो ये है कि सोसाइटी को आप केयर करना छोड़ दो सबसे पहली बात बिकॉज इन इंडिया वी हैव सीन वी हैव अ कल्चर ऑफ मास फॉलोइंग जैसे आपने वो टीयर 2 और टीयर 3 सिटी का बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि एक मोहल्ले से अगर 10 बच्चे इंजीनियर्स बन रहे हैं तो automatically it's a kind of a necessity or a pressure that your ward should also become an engineer in the future just because the parents have seen the other children succeeding in the same field and getting a good decent salary and they're sustained in their life राइट तो ये जो मास फॉलोइंग का कल्चर है ना ये हमें बंद करना चाहिए फर्स्टली वी शुड थिंक कि व्हाट एम आई केपेबल ऑफ डूइंग क्योंकि आजकल के जमाने में वी हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस ओपन ओनली द थिंग इज वी नीड टू एक्सप्लोर एंड वी नीड टू वर्क ऑन दोस पर्टिकुलर स्किल सेट्स सो दैट वी कैन सस्टेन इन द फ्यूचर मार्केट क्योंकि आजकल ट्रेंड ये है कि डिग्री से ज्यादा आपको स्किल पे भरोसा रखना पड़ेगा राइट क्योंकि अभी हम लोग इंटर्नशिप्स कर रहे हैं तो हम लोगों ने वो एक्सपीरियंस किया है इफ द स्किल डज नॉट एग्जिस्ट यू कैन नॉट सस्टेन इन द मार्केट वो कोई भी प्रोफेशन क्यों ना हो आप इंजीनियरिंग में जा रहे हो आप साइकोलॉजी में जा रहे हो आप पब्लिक पॉलिसी में जा रहे हो या तो इवन इफ यू आर स्टार्टिंग ओन स्टार्टअप
right? The skill is the most necessary element that you need to keep with you. ठीक है? तो पहली बात है कि सोसाइटल जजमेंट को उतना सीरियसली मत लो। हम्म। एंड सेकंड इज ओवर थिंकिंग करना बंद करो हर जगह हम्म। में। अभी मैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात करता हूँ, ठीक है? जैसे कि देखिए, नाउ आई कैनॉट से दैट आवर पेरेंट्स आर रॉन्ग, ठीक है? दे हैव सीन एंड एक्सप्लोर्ड द वर्ल्ड वे बिफोर अस। दे हैव बीन सीइंग एवरी इंसिडेंट्स, एवरी एक्सपोजर्स फ्रॉम द लास्ट 40-50 years, राइट? तो उनका जो एक्सपीरियंस है लाइफ को लेके या फिर सराउंडिंग्स को लेके, वो हम लोगों से काफी ज्यादा है। Sometimes I believe that you need to take up their suggestions, or even have an open discussion, what you want to pursue and how are you satisfying yourself with it, ठीक है? मैं अपने कहानी बताता हूँ। जैसे आपने अपने पहले वीडियो में बताया था कि आप इंजीनियरिंग में जाने वाले थे, बट यू लेटर ऑन शिफ्टेड योर माइंड फॉर परसुइंग आर्ट्स एंड टेकिंग पब्लिक पॉलिसी। तो मेरा भी जो स्टोरी है इज काइंड ऑफ वेरी सिमिलर विद अ डिफरेंट एंगल ऑफ अप्रोच, ठीक है? तो इसमें क्या है कि गलती मेरी तरफ से थी। ओके, लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली दैट आई हैव मेड अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स इन माय लाइफ, लॉट ऑफ मिस्टेक्स। आज मिस्टेक्स मैंने किया है, इसीलिए थोड़ा कॉन्फिडेंटली मैं खड़ा हूं, कहीं पे कुछ कर पा रहा हूं, दैट्स वेरी राइट? एंड इम्पोर्टेंट। मैं आपको इधर देयर आर एक पॉइंट लॉट करना मोर टू चाहूँगा। गो, हाँ, बिकॉज बिकॉज इट्स हाँ, बिकॉज अगर अपन मिस्टेक्स नहीं करते, इफ़ वी हैडंट मिस्टेक्स इन क्लास 12th, इन उसके बाद तो हम लोग को पता ही नहीं चलता ना कि दैट वी आर नॉट मेड फॉर दिस, वी आर राइट, मेड फॉर राइट, समथिंग एल्स। एब्सोल्युटली। या कंटिन्यू कंटिन्यू। बिकॉज अगर आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, देन यू शुड ऑलवेज हैव अ फ्रीडम ऑफ फेलियर टू, बट इन अ डिसेंट वे, जहां से आप कुछ सीख रहे हो, ठीक है? तो मेरी कहानी ऐसा है कि मेरे फादर भी साइंस बैकग्राउंड के थे, मेरे दादाजी भी साइंस बैकग्राउंड के थे। ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ द फैमिली मेंबर्स वेर फ्रॉम द साइंस स्ट्रीम। तो मैं जब छोटा था, लाइक व्हेन आई वाज ड्यूरिंग माय सेकंड और थर्ड स्टैंडर्ड, आई हैड अ बिलीव कि इफ यू टेक साइंस यू विल बी द मोस्ट सक्सेसफुल पीपल ऑन दिस अर्थ, ठीक सेम, है? एग्जैक्टली सेम। तो ऐसा परसेप्शन मेरा बना था, एंड मैं वही परसेप्शन को लेके 10th पास किया, 12th भी पास किया वही। तो बेसिकली क्या था कि अब साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस, दीज वर वन ऑफ द लाइक थ्री कोर सब्जेक्ट्स, राइट, टिल आवर 10th। हम्म। तो उसमें क्या होता है कि जिस सब्जेक्ट में आप अच्छा होते हो, अगर आप सोशल साइंस में अच्छा हो देन यू गो फॉर ह्यूमैनिटीज। इफ यू आर गुड एट साइंस एंड मैथ्स यू गो फॉर साइंस, और इवन समटाइम्स यू टेक कॉमर्स, राइट? तो मेरा केस ऐसा था कि सोशल साइंस वाज समथिंग जहाँ पे मुझे ज्यादा एफर्ट्स नहीं देने पड़ते थे। बहुत एफर्टलेसली भी मैं पढ़ के उसको अच्छा स्कोर लाता था। वैसे साइंस और मैथ्स में थोड़ा सा एफर्ट देने के बाद मेरा रिपोर्ट कार्ड में अच्छा मार्क्स आता था। तो लाइक मैं मेरे पेरेंट्स ने बहुत बार कहा है कि आई थिंक यू शुड गो फॉर ह्यूमैनिटीज इन द फ्यूचर, बिकॉज आई हैव सीन यू, यू कैन ग्रैब द कॉन्सेप्ट्स एफर्टलेसली एंड डिलीवर इट इन अ वेरी क्वालिटेबल मैनर। तो लेकिन मैंने सुना नहीं, मुझे लगा कि अरे नहीं, आई विल टेक साइंस, आई विल बी एन इंजीनियर, आई विल गो टू आईआईटी, आई विल क्रैक द प्लेसमेंट ऑफ गूगल एंड आई विल बी सिटिंग एट द गूगल ऑफिस आफ्टर फ्यू इयर्स। तो ऐसा मेरा परसेप्शन था। चलो, मम्मी पापा ने कुछ कहा नहीं, जो करना है कर ले बेटे। तो ऐसे करते करते मैं 10th भी पास कर दिया। फिर बारी आई स्ट्रीम चूज करने की। बोर्ड्स के रिजल्ट में, ठीक है, माय परसेंटेज वाज अराउंड 85। हर जगह में मेरा 90 प्लस स्कोर था, बट इट वाज ओनली साइंस एंड मैथ्स जहां पे मेरा स्कोर 70s में आया था। अब अगर कोई समझदार बच्चा हो, what he will go for, he'll definitely go for humanities, right, instead of choosing science stream as an option। लेकिन मैंने ऐसा किया नहीं। मैंने किया कि चलो, कोविड था, हम लोगों का ज्यादा क्लासेस नहीं हुए थे, दैट्स व्हाई आई गॉट लो स्कोर्स, आई विल गो फॉर साइंस ओनली। आई टू पीसीएम एंड माय फोर्थ सब्जेक्ट वाज साइकोलॉजी। फिर चला गया। लेकिन 11th 12th में तो साइंस का जो नक्शा है वो बदल जाता है। इट्स नॉट द साइंस दैट यू हैव स्टडीड टिल योर 10th। वहां पे फिजिक्स में कहाँ से रे ऑप्टिक्स, कैलकुलस, मैथमेटिक्स में कहाँ से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मुझे कभी समझ ही नहीं आया। एंड आई स्टिल डोंट रिमेम्बर हाउ आई क्लियर माई 12th। रट्टाबाजी करके बस मैंने 12th क्लियर किया।
उसके बाद भी लेकिन मुझे मन था कि मैं इंजीनियरिंग करूंगा करूंगा करूंगा। लेकिन तब पता है मेरे माँ बाप ने थोड़ा सा बुला के बताया कि देखो बेटे, लेट्स हैव अ वेरी ओपन एंडेड एंड अ राउंड टेबल डिस्कशन अमंग्स द थ्री पीपल। अब चलो, तुमने साइंस लिया, हमने कुछ मना नहीं किया तुमको, बट नाउ यू आर मूविंग इन टू अ प्रोफेशनल लाइफ, राइट? क्योंकि कॉलेज के बाद हम प्रोफेशन में ही जाएंगे, एंड नाउ यू कैनॉट चीट ऑन योर सेल्फ। सो दैट पर्टिकुलर सेंटेंस हिट मी वेरी हार्ड, क्योंकि ट्वेल्थ में भी मेरे उतने कोई खास नंबर आए नहीं थे। रादर हैविंग अ गुड स्कोर इन पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, आई स्कोर बेटर इन द ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट्स लाइक साइकोलॉजी, इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन एंड ऑल, जहाँ पे लाइक 80 90 ऐसे मार्क्स आते थे। लेकिन इन सब सब्जेक्ट्स में मेरे कम स्कोर्स आए थे। तो देन आई थॉट कि नो, आई शुड गिव अ थिंक अबाउट इट। क्योंकि अगर मैं इंजीनियरिंग करने जा रहा हूँ, अगर प्राइवेट कॉलेजेस में लूँ, द थिंग इज कि अगर मुझे मैथ्स में कम नंबर आए हैं, फिजिक्स में कम नंबर आए थे, तो डू यू थिंक दैट आई कुड सस्टेन इन दिस इंजीनियरिंग मार्केट? क्योंकि वहां पे मैंने सिलेबस देखा है कि टिल ट्वेल्थ वी ओनली डिड सिंगल कैलकुलस, लाइक सिंगल इंटीग्रेशन एंड ऑल। वहां पे तो डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन मैं कैसे समझूंगा? ऐसा ना हो कि मेरा बैकलॉग से पूरा इंजीनियरिंग निकल हम्म, जाए। तो आई गेव अ थिंक ऑन इट कि शायद आई वॉज नेवर मेड फॉर द साइंस स्ट्रीम। ये जो गलती थी ये अब नहीं, बल्कि मैंने वो गलती लाइक जब स्ट्रीम चूज करने की बारी आई थी, शायद मैंने तभी की थी। आई शुड हैव गॉन फॉर ह्यूमैनिटीज रादर चूजिंग साइंस एज माय डोमेन इन माय हायर सेकेंडरी। सो तब मैंने सोचा कि एक साल ड्रॉप ले लेता हूँ, फिर थोड़ा आई थिंक अबाउट इट, वेयर शुड आई गो फॉर इट। देन धीरे धीरे आई डेवलप माय इंटरेस्ट ऑन साइकोलॉजी, ओके, देन अदर रिलेटेड फील्ड्स इन ह्यूमैनिटीज। तब मैंने सोचा कि आई टेक ह्यूमैनिटीज, आई डू बीए। हम्म, अब बहुत पेरेंट्स इसमें क्या करेंगे कि अरे बेटे, तुम साइंस स्ट्रीम के थे, यू शुड हैव गॉन फॉर कॉमर्स, बट व्हाई बीए? yeah, that's the लेकिन मेरे point. माँ बाप Yeah, मेरे माँ बाप ऐसे नहीं थे। hmm, They were that's the like, point. लो कि बेटे, I कर लो। would like to divide students into two brackets here. एक या। जिनके पेरेंट्स सपोर्टिव होते हैं जैसे कि आपके थे, हम्म। माय पेरेंट्स आर आल्सो वेरी सपोर्टिव थ्रू आउट द जर्नी, एंड एक होते हैं जिनके थोड़े अनसपोर्टिव पेरेंट्स होते हैं। आई वुडंट से अनसपोर्टिव, बट अगेन कि नो, वो उतने डिसीजन में सपोर्ट नहीं करते। दे आर लाइक कि राइट। अगर तुम्हारे लिए इंजीनियरिंग बेस्ट है, सो यू प्रिपेयर फॉर जेई, दैट्स आवर डिसीजन। And I have a few cases actually. Before making this video, I talked to a few people. I went through internet and Reddit पे कुछ चीज़ें पढ़ी मैंने, so I got to know the perception of the students as well, जो कि इंजीनियरिंग कर रहे हैं, अभी आईआईटी में हैं। So I'll attach some screenshots after this, and I'll also share some experiences. तो बेसिकली अगर जहाँ पर सपोर्टिव पेरेंट्स हैं जैसे आपके और मेरे, वहाँ पर तो ठीक है, थ्रू आउट द जर्नी वी आर फाइन। बट उधर भी एक प्रेशर हो जाता है हमारे ऊपर निर्णायक भाई कि हमारे पेरेंट्स हमको इतना सपोर्ट किया है। ओके, नाउ जब हम फेल हुए, मतलब कि फेल इन द सेंस कि थिंग्स डिडंट गो एज प्लान, वहां पर भी उन्होंने इतना सपोर्ट किया था। एंड नाउ व्हेन वी आर राइट। स्विचिंग स्ट्रीम्स, तब भी वो इतना हम लोग को सपोर्ट करे। सो नाउ वी हैव, अब मतलब कि हम लोग की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि नाउ अब तो वी हैव टू प्रूव अस, सॉरी या नॉट वी देम, नीड टू। बट वी हैव टू प्रूव समथिंग, नो, क्योंकि यार वो एक अनसेट प्रेशर बन जाता है। होना चाहिए नहीं होना चाहिए, आई डोंट नो, बट वो अंदर ही अंदर, जब आप भी कॉलेज आए, मैं भी कॉलेज आया, सो द फर्स्ट डे दैट वी टॉक, हम लोग का माइंडसेट काफी ज्यादा मिला उस समय। बट वी आर ऑल विद दैट गोल है एक कि यार कॉलेज लाइफ मतलब वेस्ट नहीं करनी, वी हैव टू डू समथिंग इन इट। क्योंकि जितने पाप कर्म हुए क्लास 12 तक, ड्रॉप लिया, ठीक है, अब नहीं करना। अब डिसीजंस राइट। गलत हो सीखेंगे, सही बात है, पर अब ऐसा नहीं करना यार कि ये कॉलेज लाइफ वेस्ट कर दें अपन। दैट वाज आवर माइंडसेट बैक इन 2024 व्हेन वी जॉइंड कॉलेज इन जुलाई, है ना। अब अगर तो वो जब सपोर्टिव पेरेंट्स होते हैं तो वो एक माइंडसेट बन जाता है। आपका भी वही था, मेरा भी वही था। अब जब अनसपोर्टिव वही। पेरेंट्स हैं, आई हर्ड अ स्टोरी फ्रॉम माई फ्रेंड ओनली कि उसकी ये स्टोरी थी कि क्लास 10th में
हर पेरेंट्स वर लाइक कि बेटा तुझे क्लास 11 12 में बायोलॉजी पर लेनी ही लेनी है, डॉक्टर बनना है हम्म, बेसिकली। अब शी वॉज लाइक कि मैं तो पढ़ ही नहीं सकती, मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है, मेरे नंबर ही नहीं आते 10th में। शी वॉज लाइक नॉट पास विद गुड नंबर्स इन साइंस। पेरेंट्स वर लाइक उससे क्या होता है, सब करते तुम भी कर लोगी, ऐसा थोड़ा ना है कि तुम्हारे अंदर कम कैपेसिटी है, कम कैपेबिलिटी है। सो शी फॉट कि नहीं मैं तो नहीं करूंगी, अब मेरी शादी करवा दो, मैं पढ़ूंगी नहीं, पर मैं मतलब कि मैं साइंस नहीं कर रही, आई विल डू साइकोलॉजी एंड ह्यूमैनिटीज या जो भी, बट मैं साइंस नहीं कर रही। सो शी वॉज डिटर्मिनेड ऑन हर डिसीजन। पर सब ऐसे नहीं होते। सो हर पेरेंट्स और हम्म, इवेंचुअली कि ठीक है, अब नाउ आफ्टर दी शी इज डूइंग साइकोलॉजी इन बीए, अब उसका क्या है कि नाउ देयर पेरेंट्स आर फोर्सिंग हर फॉर एमबीए, कि अब बेटा तुझे तो एमबीए की तैयारी स्टार्ट करो तो एमबीए करना है। सो द प्रेशर इज कॉन्स्टेंटली देयर, बट शी हैज द राइट फाइटिंग स्पिरिट। तो वो निकाल, वो ठीक है, वो कर लेगी। पर कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं यार, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो बात नहीं कर पाते, लाइक दे कैन नॉट बी राइट दिस डिटर्मिनेंट। भले ही उनके पेरेंट्स उनसे सुने करें, पर वो बात लिटरली कर नहीं पाते। सो इधर बस मेरा यही है कि मैंने भी, ठीक है, अपने पेरेंट्स सपोर्टिव थे, दे हर्ट टू अस कि नहीं पापा मम्मी नहीं हो पा रहा है, आई वांट टू स्विच, नहीं हो पा रहा है मुझसे इंजीनियरिंग, इट वाज अ बैड डिसीजन, आई अग्री टू दैट। तो अब आगे क्या, है ना। पर राइट अगर आपके पेरेंट्स नहीं हैं उतने सपोर्टिव, प्लीज़ प्लीज़, आप ही के पेरेंट्स हैं, आप ही के मम्मी पापा हैं, बैठ के बात करो। जस्ट ट्राई टू कन्विंस देम विदाउट मेकिंग योर होम अ वॉर जोन। वॉर जोन मत बनाओ, कलेश मत करो, पर राइट बैठ के बात करने की कोशिश करो एंड सिट विद एन ओपन माइंड। ये मत समझो कि मैं ही सही हूँ वो गलत है। एज निर्णायक ऑल्सो सेड कि उन्होंने हम लोग से बहुत ज्यादा दुनिया देखी है, इट्स जस्ट दैट मिसमैच ऑफ परसेप्शंस, है ना। तो उनको बैठ के अपनी साइड समझाओ कि पापा मम्मी और जो भी हैं आपके, जो भी है आपके डिसीजंस लेने में है, कि आई कैन नॉट डू दिस, मेरा ये मन है, मैंने ये एक्सप्लोर किया है। एंड इफ यू हैव रियली एक्सप्लोर टू दैट, आपके अंदर वो कन्विंसिंग पावर कहीं ना कहीं होगी, बिकॉज यू हैव गॉन थ्रू दैट, है ना। कि आपने अपना जो कोर्स सेलेक्ट किया है कि आपको करना क्या है आगे, बिकॉज सी दे आर ऑल्सो कंसर्न फॉर यू, दैट्स व्हाई दे आर वरीड फॉर यू। उनको जैसे उनका माइंडसेट बना हुआ है कि नहीं बेटे के लिए इंजीनियरिंग ही सही है। सो बिकॉज उनका कोई माइंडसेट किसी एक्सपीरियंसेस से ही बना है ना। सो उनका भी एक्सपीरियंस गलत नहीं है। सो सिट विद इन द ओपन माइंड कि कहीं ना कहीं वो भी गलत हो सकते हैं। आफ्टर अ डिस्कशन इट कैन बी पॉसिबल कि नहीं दे आर राइट, बिकॉज जो मैंने कोर्स सेलेक्ट किया है उसमें आगे जाके और बहुत डिफिकल्टीज आ सकती हैं। सो सिट विद एन ओपन माइंड, डिस्कस करो। आपको क्या कहना है नायक भाई इस पर? वही बिल्कुल सही कहा है आपने। तो मैं तो यही कहूंगा कि समझाओ, प्यार से समझाओ, हाँ। झगड़ा मत करो बीच में। दोनों पर्सपेक्टिव कहीं ना कहीं से राइट भी होंगे, रॉन्ग भी हम्म। होंगे। But the thing is, you need to come with a unanimous conclusion after the हम्म। discussion, right? कि उनके तरफ से क्या सही है और आपके तरफ से क्या सही है। तो जैसे मैंने पहले भी अपने पॉइंट में बोला कि सोसाइटियल जजमेंट में ज्यादा केयर मत करो। लेट्स मूव ऑन टू क्यों? सोसाइटल जजमेंट नाउ। ठीक है, जैसे सोसाइटल जजमेंट, ठीक है। अब मैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताता हूँ। जैसे मैंने वो ड्रॉप ईयर का जो सर्टेन वो पॉइंट बताया था, उसके ड्रॉप ईयर में बहुत कुछ मेरा हुआ था। यू माइट नो इट पर्सनली, और somebody who is हम्म। viewing this on YouTube can relate to it, लेकिन मैं आज नहीं बताऊंगा वो चीजें, मैं कभी और बताऊंगा। तो उस टाइम देखो, सोसाइटल जजमेंट का ख्याल मेरे भी दिमाग में आया था। ओके, इवन आई थॉट ऑफ व्हाट पीपल विल से, व्हाट पीपल विल जोक अराउंड मी। बट द थिंग इज, देखो, मेरा बचपन से, हु पेड द फीस फॉर माई स्कूल? राइट, इट वॉज माई डैड हु पेड। मुझे बाहर घुमाने के लिए कौन लेके गए थे? मेरे पापा थे जिन्होंने मुझे घुमाने के लिए ले गए थे। मेरा हॉस्टल का फीस कौन दे रहा है? मेरे पापा दे रहे हैं। सो आई डू नॉट हैव टू रिलेट एनीथिंग विद द सोसाइटी। सोसाइटी जाए बाहर में, उनको बकना है। पीपल आर मेंट टू से, राइट, दे विल स्पीक बिहाइंड योर बैक, बट द थिंग इज, यू शुड नॉट केयर अबाउट इट, यू शुड जस्ट मूव फॉरवर्ड। नेवर लुक बैक एट योर लाइफ। उनको पत्थर गिराने दो, आप उसी पत्थर से एक इमारत खड़ी करो। ये आपका स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होना चाहिए। तो वही बात है कि देखो, अगर मेरे बाप बाप ने इतना सेक्रीफाइसेस किया है, तो मेरा जो कमिटमेंट होना चाहिए सिर्फ उन लोगों के साथ होना चाहिए, नॉट विद द सोसाइटी एट दिस पॉइंट। दे या शुड बी सोसाइटी के हैप्पी, यू लिए शुड मेक करूंगा, देम हैप्पी। यू शुड मेक देम हैप्पी एंड आई शुड मेक माई सेल्फ हैप्पी एंड दे हाँ। शुड बी हैप्पी seeing me that I'm happy with my job.
ये सबसे पहला पॉइंट होना चाहिए। वही कहते हैं ना और कि दूसरी बात ये है कि सोसाइटी को भी अब थोड़ा चेंज होना चाहिए। हम्म, जैसे मैंने बोला, राइट, द वर्ल्ड ऑफ प्रेडिक्टिबिलिटी वर्सेस द वर्ल्ड ऑफ एक्सप्लोरेशन। जैसे अब आप वही टीयर 1 सिटीज में जाए, जैसे हम लोग बैंगलोर में अपना कॉलेज कर रहे हैं, राइट। अब आपके बनारस में जो सोसाइटी है, मेरे गुवाहाटी में जो सोसाइटी है, बैंगलोर के सोसाइटी में अगर हम कंपेयर करें वो बहुत अलग है। अभी जैसे ये बात हम कर रहे हैं, सोसाइटल जजमेंट, स्ट्रीम चेंज करने की बात, मे बी पीपल इन बैंगलोर वुड नॉर्मलाइज दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, क्योंकि उनको जो स्किल्स मिला है और उनको जो अंडरस्टैंडिंग है इन सब के बारे में वो बहुत अलग है। they'll be like, yeah, if it didn't work out you can go for the next option। whereas ये हमारे सोसाइटी में शायद उतना एडवांस नहीं हुआ है बिकॉज ऑफ द एक्सपोजर। अब जैसे हमारे पड़ोस में 2 इंजीनियर बने तो हमें भी बनना चाहिए, या फैमिली में 2 इंजीनियर बने तो हमें भी शायद बनना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं जो गैप है वो हमें बहुत डिस्ट्रप्शंस ला रहा है। सो आई थिंक वी कैन ट्राई ऑन फिक्सिंग दिस गैप एंड मेकिंग अ कॉमन कंक्लूजन और अ बिलीफ दैट you should do whatever your heart and your mind says। एग्जैक्टली। और बेसिकली यार सोसाइटल जजमेंट क्यों होता है? इट हैपेंस बिकॉज ऑफ द फियर कि अगर मैं नहीं कर पाया जो मैंने चूज किया है, मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूँ, इंजीनियरिंग से तो स्विच किया ही किया, गया किस में, आर्ट्स में। अब आई डोंट नो, यू विल आल्सो रिलेट टू दिस कि पता नहीं सोसाइटी ने आर्ट्स का हवा क्यों बना रखा कि आर्ट्स आर्ट्स करेगा, आर्ट्स के बाद क्या है? आई डोंट नो व्हाई। बहुत से ऐसे हाँ, लोग हैं वो भाई जो मुझे आर्ट्स भी नहीं करके समझ सक्सेसफुल आता। हुए हैं। आई डोंट नो, ठीक है भाई, इंजीनियरिंग इज अ प्रोफेशनल कोर्स, इट्स नो डाउट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कोर्स, पर नीश नहीं बचा है अब उधर भी कुछ। सो एक तो मेरा सबसे बड़ा ये था कि अगर मैं इंजीनियरिंग से बीकॉम नहीं, बीए, बीबीए नहीं, बीए में जा रहा हूँ, दो माई डिग्रीज इकोनॉमिक्स, बट मैं बीए में जा रहा हूँ, राइट। डिग्री का नाम तो बैचलर्स ऑफ आर्ट्स है ना। तो उसके लिए मुझे रिकवर करने में उससे बहुत टाइम लगा। एंड आई वोंट लाई टुडे ऑल्सो कि अगर मैं, मेरे फ्लैशबैक्स आते हैं वो कि यार इंजीनियरिंग कर रहा था अब आर्ट्स में आ गया, बट दैट द पॉइंट इज कि नाउ 2 years इनटू द कॉलेज अब मुझे वो इफेक्ट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि आई हैव लर्न दिस कि इफ यू आर फोकस्ड ऑन योर गोल, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल जो ये सब ये सोचेंगे कि यार सोसाइटी क्या कहेगी, है ना, तो उसमें ही वो रह जाएंगे, ओवर थिंक करते रहेंगे। मैं पहले राइट। उस समय वैसा था कि यार क्या कहेंगे, ले तो ले रहा हूं पर उसके बाद लोग क्या कहेंगे। दूसरा, जब कॉलेज में आया, देखा, तो समझ में आया कि फिर फोकस ऑन द गोल, you don't have the ability to think about the society, you don't give anything about care about the society, है ना, क्योंकि आप तो अपने गोल की तरफ फोकस्ड हो। एंड एज यू मेंशन ब्यूटीफुली दैट फीस कौन भर रहा है, घर पे जाते हो तो खाना कौन बनाता है अच्छे से, मम्मी पापा बनाते हैं वही। ना, उनके बारे में केयर करो यार, फॉरगेट अबाउट अदर पीपल। वो बात कहेंगे 5 मिनट बाद, 5 दिन तक भूल भी जाएंगे, बिकॉज और देखिए आजकल लोग इतना बिजी है सोशल हाँ, मीडिया और एक्सपोजर के साथ कि आज मेरे साथ क्या हादसा हुआ है कल भूल भी जाएंगे। उनको बस उस पॉइंट पे आपको नीचा फील करवाना है कि अरे यार तू तो इंजीनियरिंग से आर्ट्स में आ गया, जज करना है, हटा देना, वो बाद में भूल जाएंगे। दे हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन देयर लाइफ आल्सो, कौन सा उन्होंने अपने कुछ किया। तो डोंट थिंक अबाउट सोसाइटी, है ना, करो अपने लिए, करो अपने पेरेंट्स के लिए करो। इट्स ऑल अबाउट दैट। एंड ये मुझे लेट थिंकिंग आई है, नायक भाई को भी अभी कॉलेज ही आके आई है, बट वी हैव लर्नड एक्सपीरियंसिंग इन या। कॉलेज कि डू इट फॉर योर फैमिली, डू इट फॉर द पीपल यू नो द पीपल यू लव, जो आपकी राइट। लाइफ में ज्यादा वेटेज देते हैं। सबको इंपॉर्टेंस, सबको इक्वल वेटेज मत दो। गिव मोर वेटेज एंड ओनली वेटेज टू पीपल हु मैटर टू यू, दैट्स राइट। इंपॉर्टेंट। एंड दैट्स अ ब्यूटीफुल लाइन बाय जाकिर खान यार, कि माँ बाप कभी आपके सपनों के विरोधी नहीं है, वो कभी आपको गरीब नहीं हाँ। देखना चाहते, राइट। आई वॉज टॉकिंग टू माई मदर अदर डे कि मम्मी यार आप लोगों का क्या, यू हैव बीन अ पेरेंट ऑल्सो एंड यू हैव बीन अ चाइल्ड ऑल्सो। सो वो यही कहती हैं यार कि पेरेंटल प्रेशर, अब अगर हम बच्चों में, हम लोग बहुत स्टार्टिंग से, फॉर डेवलपिंग न्यू हॉबीज, तब तो उनको कोई जानकारी हम्म। होती नहीं, दे डोंट हैव नॉलेज। फॉर एग्जाम्पल कि नो, आई वॉन्ट माई सन और माई डॉटर टू प्ले टेनिस, एंड एक पॉइंट तक मैं उसको करूंगी पुश उस चीज के लिए। आफ्टर ही हैज सर्टेन माइंडसेट, ही बिल्ड्स अ माइंडसेट जहां पर उसकी थिंकिंग कैपेसिटी ठीक है कि अब मुझे ये नहीं अच्छा लग रहा है, तो वो अलग बात है, आई विल नॉट पुश हिम और हर फर्दर। बट एक पॉइंट स्टार्ट करने के लिए तो पेरेंट्स ही डिसाइड करेंगे ना कि आप कौन से डायरेक्शन में जा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ बचपन से लेकर पेरेंट्स कोई हॉबीज, कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए पुश नहीं करेंगे, तो व्हाट व्हाट विल यू बी ना,
कुछ भी नहीं हो सकता. सो दैट्स व्हाई पेरेंटल प्रेशर, जैसे आपने स्टार्ट किया था, हमने स्टार्ट करते कि इट्स पॉजिटिव एज नेगेटिव, एज वेल एज नेगेटिव. राइट तो डिपेंड करता है कि टाइमिंग क्या है एंड हाउ इट्स बीइंग यूज्ड. राइट, राइट. वो सो डायरेक्शन सोसाइटी, मैटर करता है आप। हाँ देखो, सोसाइटल जजमेंट का तो सिंपल है. केयर ही मत करो दूसरे क्या कह रहे हैं, अपने गोल पे फोकस रहो. गोल पे फोकस रहोगे ना तो इतना फोकस रहोगे कि खुद ही नहीं समझ में आएगा कि दुनिया कह क्या रही है, मतलब ही नहीं पड़ेगा उससे, एग्जैक्टली है ना. देखिए, अभी हम अपने ही एक्सपीरियंस ले लेते हैं। अभी हाँ. कॉलेज में हम थर्ड ईयर में आने वाले हैं, हाँ. राइट? हमने अब 2 साल में इतना कुछ किया कि याद भी नहीं है कि लास्ट 2 साल पहले हुआ भी क्या था हमारे सही साथ। बात है. नाउ व्हेन आई लुक बैक एट माय जर्नी, आई एम लाइक, अच्छा मैंने इतना बड़ा डिसीजंस लिए थे। अरे वाओ, यार, हैट्स ऑफ व्हेन टू वी मी, आर लाइक आई फील लॉन्चिंग लाइक दैट। प्रोजेक्ट नीड, अपना जो प्रोजेक्ट या नीड नर्चरिंग अर्थ एसेंशियल रिसोर्सेज, कितने लोगों ने हमको आगे क्या किया कि सोशल वर्क करोगे, यही रह गया है. वी डिडंट लिसन टू देम. जो कहना है कहो. राइट, द पॉइंट इज यू आर डूइंग समथिंग, दे आर नॉट डूइंग समथिंग. ठीक है, तुमको हमेशा या बुरा लगेगा ही लगेगा. ऑफ कोर्स, राइट. एंड समथिंग इज ऑलवेज बेटर देन नथिंग। हाँ. कुछ करो, प्रोडक्टिव करो, आगे बढ़ो. सो व्हाट आर योर एंडिंग रिमार्क्स, निर्णायक? Ending remarks, yeah, it's very simple. Like, there should be a very careful bond between both the parents and the children. क्योंकि जो माँ बाप और बच्चे के बीच में जो रिश्ता होना चाहिए, that should be actually very should be taken into an utmost positivity. जो कम्युनिकेशन होना चाहिए दोनों के बीच, एक ओपन एंडेड रखना चाहिए। दोनों को एक दूसरे को समझ आना चाहिए। Like they should know what I am feeling about, and I should also care about their emotions and their needs as well. क्योंकि हम लोगों का भी ये फर्ज बनता है कि उन्होंने जो हमें दिया है, we should also give a return back to it, right? So that is what I think about the relationship between a parent and a children. ठीक है, दैट इज अबाउट वेल parenting and सेड, वेल societal सेड. judgment जो मैंने कहा है। हाँ. See, don't really push yourself on thinking what the society or your nurture is supposed to be thinking about you. It does not matter. यार Yes, देख बना. societal हाँ. जो जजमेंट है, थोड़ा आप दिमाग में रखो, लेकिन उसको इतना सीरियसली हम्म. मत लो कि आप अपने आप को भूल जा रहे हो। हम्म. So that is one of the very crucial point that one needs to remember. यार देख, Always बनारस में be रहता हूँ. focused on, हाँ, हाँ, मैं बनारस में रहा हूँ. आई हैव सीन नंबर ऑफ डेड बॉडीज. लास्ट में जाके कोई ये नहीं पूछता, जब अंतिम उस पर जाते हैं, कि 75% आए थे हम्म, बोर्ड्स में, इंजीनियर था, आर्ट्स में था, किस में था, है ना. आग कभी जलने से पहले ये नहीं पूछती कि इंसान ने किया क्या है. में लास्ट में तो सबको मणिकर्णिका घाट में ही तो समा जाना है ना। वही भाई. आप 96% लाओ, आप 70% लाओ, इट हार्डली मैटर्स एट द एंड ऑफ योर लाइफ, राइट? द थिंग इज व्हाट यू कंट्रीब्यूट टू योरसेल्फ एंड व्हाट यू कंट्रीब्यूट टू द पीपल इन द सराउंडिंग। जो काम करो अच्छे से करो। So हाँ. that's what every human being should take up, and that's how you should move forward with your life. एग्जैक्टली यार, क्योंकि बहुत से आईआईटीएन से भी बात की, बहुत से ऐसे लोगों से भी बात की हु आर एट गुड प्लेसेस राइट नाउ, जो अच्छा अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो चुके हैं. आईआईटीज में जाने के बाद भी भाई बहुत से सुसाइड्स होते हैं. इट्स नॉट लाइक दैट इट इज़ द एंड कि आप उधर जाके सक्सेसफुल हो ही जाओगे. टॉकिंग टू पीपल ओवर देयर, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है उधर भी. एंड ये प्रेशर सोसाइटल जजमेंट से और ज़्यादा इसलिए हो जाता है कि अरे आईआईटी जाके भी नहीं कर पाया कुछ, है ना. Right. तो सोसाइटी तो हर पॉइंट पे जज करेगी. आप आईआईटी चले गए उसके बाद भी जज करेगी, आप आईआईटी नहीं गए उस पर तो जज करेगी करेगी. कहीं भी चले जाओ, लाइफ में कुछ भी कर लो, पीपल विल फाइंड वेज टू पुट यू डाउन, टू टेक यू डाउन, एंड नेगेटिविटी स्प्रेड करेंगे ही करेंगे वो, बिकॉज दे But डिडंट अचीव सर्टेन थिंग्स, है ना. सो चिल. द मेन पॉइंट इज talk to your parents and do it for them, right, do it for yourself. लास्ट में जब आप जा रहे हो, at your end moments, you should be like, मैंने एक हैप्पी एंड अच्छी लाइफ जी, आई एम सेटिस्फाइड विद माई सेल्फ. दैट्स इंपॉर्टेंट. इट्स नॉट लाइक आप बीए इन इकोनॉमिक्स एंड पब्लिक पॉलिसी करके सेटिस्फाई हो रहे हो, कि आप इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर साइंस करके सेटिस्फाई हो रहे हो. It's the point. You have to satisfy yourself first, and then make your parents happy. Don't think about others. वो नॉइज लो ही मत, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो, है ना. exactly.
बिकॉज Fair इफ यू enough. आर नॉट जजिंग समवन इन सर्टन वे, डोंट एक्सेप्ट कि आपको कोई वैसे कर रहा है और आप एक्सेप्ट कर लोगे उसको, मत बोलो, या तो डायरेक्ट मुंह पे बोल दो आपने क्या किया है ना, बी बोल्ड. सो दिस वॉज द थिंग फॉर टुडेज वीडियो. अगर कहीं फंसे हो, मम्मी पापा से बात करो. दे आर योर पेरेंट्स, ट्रीट देम एज योर फ्रेंड्स ऑल्सो. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यार कि हर जगह ऐसा पॉसिबल है, बिकॉज ऑफ कोर्स मेंटालिटीज अलग होती हैं पेरेंट्स की, बट स्टिल दे आर योर पेरेंट्स, यू नो देम द बेस्ट, है ना. आपके पड़ोसी आके बात नहीं करेंगे, आप ही को बात करनी होगी. गेट योर वे आउट, बिकॉज इफ यू नीड समथिंग, कहा तो थ्री इडियट्स में उसने भी था, अब्बू नहीं मानेंगे, लास्ट में मान गए अब्बू, है ना. सो टॉक 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 इट आउट. दिल खोल के बात करो यार, दिल से बात करो, हो जाएगा. राइट नायक भाई. Right, right. चलो, by this it's the end of this video. So if you like the video, if you know connected with the experiences, हम लोग के experiences, do like and subscribe the channel, and mainly share your experiences in the comment section, because इधर ही से आप शेयर करोगे, इट माइट बी कि हम लोग जैसे कुछ और लोग हों जो रिलेट कर पा रहे हैं उस चीज़ से, इट माइट हेल्प देम एज वेल, कि मैं अकेला नहीं हूँ और भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ से सफ़र कर चुके हैं. एंड बिलीव मी, यू आर नॉट अलोन. बहुत से लोग हैं इस चीज़ से जाते हैं. सो चिल आउट, टेक डीप ब्रेथ्स. चलो नायक भाई, बाय बाय फिर.